बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदना व्रजनरंजना यशोदानंदना व्रजनरंजना यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव जया कुंज बिहारी जय राधा माधव जया कुंज बिहारी यशोदानंदना व्रजनरंजना यशोदानंदना व्रजनरंजना यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव जया कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा गुरुदेव जय गुरुदेव जय प्रभुपदा गुरुदेव जय गुरुदेव Hare Krishna. So we are studying Bhagavatam, first canto, chapter 9, passing our Bhishma Dev in the presence of Lord Krishna. Text number 45. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरय नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतर्भक्तिनिष्ठकी त्वयि तत्र तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानवाबाधिता सासमासु साधवो राजनं कत्पेतु पुष्पवृष्टया तत्र तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानवावेदिता सासमासु साधवो राजनं कत्पेतु पुष्पवृष्टया तत्र तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानवाबाधितः सासमासु साधवो राजनं कत्पेतु पुष्पवृक्षया. Prabhuji, please read the shloka. तत्र दुन्दुभयो नेदुर् देवमानववादितः शशंसु साधवो राज्ञं खाद्पेतु पुष्पवृष्टयः. Next, Mataji's. तत्र okay, part of them Rose.
हरे कृष्णा दी। पार्थ श्लोका पढ़ो। पार्थ पढ़ो। तत्र दुन्दुभय निधु देव मानव वदिता स अमुष सद्भोर राज्ञानं खत्पेतु पुष्प विस्ताय। Next, Astha, you read the shloka? No. तत्र दुन्दुभयो देवमानमवादिता ससंशुसादवो रज्ञां खातपेतु पुष्पवृष्टया। Next पढ़ो। पूजा माता जी। तत्र द्वन्द्वयो देवमान्ववदितः संसु साधवो राजनं खत्पेतु पुष्पवृष्ट्या। Word to word meaning. Tatra, thereafter, Dundubhaya, drums, Neduhu were sounded, Deva, the demigods, from other planets, Manava, men from all countries, Vaditaha, written by, Sasa Masuhu, praised, Sadhava, honest, Rajanam, by the royal order, Khat, from the sky, Pituhu, began to fall, Pushpa Vrishtaya, shower of flowers. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. आज इंग्लिश में बोल सकते हैं ना? हरे कृष्णा अक्षय. Would you like to read the shloka, Akshay? Shloka पढ़ो. पढ़ो. तत्र दुन्दुभयो नेतर देवमनवा वदिता समसु साधवो रचनम् खातपेतु पुष्पा. Thank you. माता जी आवाज नहीं आ रहा है? हो गया? Done? You are done? Yes, माता जी. Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. आज हिंदी speaking नहीं है ना? I can speak in English. Okay. Thereafter, both men and demigods sounded drums in honor, and the honest royal order commenced demonstration of honor and respect. And from the sky fell showers of flowers. So, abhi, generally, what had happened? Bhishma Dev has already left his body, okay? And he went back to Vaikuntha, the Golok. Matlab, he went to the planet of Parth Sarathi because उनकी इष्ट देव कौन थे? The meditation of object, that is Parth Sarathi. और कहा जाता ना यम यम वापि स्मरण भाव, जिनका चिंतन करोगे वहीं जाओगे. If one is a worshipper of Lord Ramachandra, so he might left his body meditating on Lord Ramachandra. So he will go to the spiritual world, spiritual abode of Lord Ramachandra. Spiritual abode ही है वो भी, but he will go to the Lord Ramachandra's planet. Similarly, Bhishma Dev, his object of deity, that the deity he worshipped was Parth Sarathi. And then finally, by getting his body, he went to the planet of Parth Sarathi. Parth Sarathi के महल वहाँ पे spiritual abode में जाते हैं. अब क्या होता है? Everywhere, both men and the demigods drums in honor, and the honest royal order commenced demonstration of honor and respect. And from the sky fell showers of flowers. Now we can see a little difference. Okay, a death of an ordinary person and a death of an devotee. Okay, when a normal ordinary person die, what had happened? People generally cry a lot. हाँ, बहुत जोर जोर से रोते हैं लोग, कंधन करते हैं. अरे अब इसका क्या होगा? अरे तुम चले गए, हमारे घर वालों का क्या होगा? Now what will happen to your daughter? How she will get married? What about your son? He has not yet get the job. They all cry not for the person, but for the things. कि अब इसका क्या, उसका क्या, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. Okay, man, it's okay. Hold on. People don't cry for the person. They cry for अरे अब इसका क्या, उसका कितना छोड़ के चले गए. So they cry for the dead thing, and people generally cry when somebody leaves the body. तो मगर भगवद गीता का श्लोक क्या बोलता है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहिति. जो धीर व्यक्ति है, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना उसको डिस्टर्ब नहीं करता, because he knows that soul never dies. It's only changing the body. ठीक है?
And moreover, but the people, those who are on material bodily concept, उनको तो ये भी नहीं पता, मतलब they don't even cry for the person, they cry for something else, you know, and ये रोना होता है उनका शरीर के दुख के कारण जो भी है. But when the devotee departed, it's a moment of joy. Why? It's actually separation and joy both. ये दोनों चीजें होती है, एक तरह का दुख भी है और सुख भी है. So दुख किस चीज का है कि now we are not going to get the association of that devotee. And the joyous moment, how it's an auspicious and joy moment, because that soul has finally made the entry back to Godhead. And now अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट है, वहां जाके भगवान की सेवा करेंगे. So that's how that moment is very like honorable for the devotees. तो बहुत glorious moment होता है when a devotee departed, because when devotee departed, he finally finished up his business in material world and went back to Goloka Dham to be with the spiritual in a spiritual abode in the service of Lord. वही तो हमारा real home है ना. So that in that sense it's a very like it's a very joyous moment. So generally you have seen कि when a Vaishnava devotee departed, we do kirtana, we distribute prasadam feasting होता है, हाँ, like कीर्तन होता है, और पूरे चारों ओर परिक्रमा करके वो बॉडी को, मतलब उनके शरीर को लिया जाता है, पूरा मंदिर की परिक्रमा करवाई जाती है, दर्शन करवाया जाता है. So that is in like it's a very कहते हैं कि जो जनरली हमारे कस्टम्स में ऐसा नहीं होता, उसको बोलता है कि अशुद्ध माना जाता है, नहीं लेके जाता. बट इन वैष्णव ट्रेडिशन इज टोटली डिफरेंट बिकॉज इट्स अ मोमेंट ऑफ जॉय. ऐसे अब जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे बिल्ली के मुंह में चूहा और बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा, अंतर है कि नहीं है? बिल्ली के मुंह में चूहा तो वो चूहा डर रहा, मैं किसी भी समय मेरा तो काम हो जाएगा. बट बिल्ली के मुंह में वही बिल्ली का बच्चा है, he knows my mother is caught, मदर ने पकड़ा है. इट्स अ लविंग जेस्चर. तो सिमिलरली मृत्यु, भगवान कहते हैं मृत्यु हरस चाहम, मतलब कि लॉर्ड सेज आई एम द डेथ personified, but for those who are atheistic people, those who don't understood me, they got to know about me at the moment of death. मृत्यु के समय मुझे जानते. हाँ, और मृत्यु एक भक्त के लिए क्या है? डेथ फॉर अ डिवोटी इज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन. वो जिसके सिर पे वो हाथ रख के कहाँ जाता है, सिर पे पैर रख के कहाँ जाता है? गोलोक धाम में जाता है. तो मृत्यु, हरे कृष्ण गीता माता जी, तो मृत्यु एक भक्त के लिए कैसा है? उसके सिर पे पैर रख के तो भगवत धाम जाना, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन. बट फॉर अ नॉन डिवोटी, पीपल आर अफ्रेड ऑफ डाइंग. डोंट नोबडी वांट टू डाई. कोई मरना नहीं चाहता. तो आपको पता है माइकल जैक्सन ने कोई दर्जनों डॉक्टर रखे थे, दर्जनों डॉक्टर, जो रोज उसका सुबह से शाम तक मतलब पूरा उसका बॉडी का चेकअप किया करते, कोई बीमारी तो नहीं है, बिकॉज दे डोंट वांट टू डाई, वांट टू लिव. कितने साल तक दिए? 50 साल तक माइकल जैक्सन लिव. हाँ, तो दर्जनों डॉक्टर थे, उसका रोज देखभाल करते थे, काफी सर्जरी वर्जरी कराया, काफी इंजेक्शन लेता था वो. अंत में जब उसको शरीर त्यागा, मतलब तो डॉक्टर्स ने बोला हिज बॉडी इज ओनली अ स्केलेटन. इतने छिद्र हैं इसके शरीर में, मतलब इतने इंजेक्शंस लग चुके हैं, सिर्फ स्केलेटन है ये, कुछ नहीं है. मतलब ही वाज सो अफ्रेड ऑफ डेथ कि इतने दर्जनों डॉक्टर रखे, सुबह से शाम उसका डाइट भी, कितने लोग तो उसको चेक करके तो उसको खाना मिलता था कि कोई जहर ना मिल जाए. हाँ, ही वाज सो अफ्रेड ऑफ डेथ, डाइंग. बट योर मनी, कहते हैं योर मनी कैन नॉट बाय बैक योर सोल. यू नो, ये तो खैर हम आध्यात्मिक जगत के स्तर पर हो गया कि कितना ही पैसा क्यों ना हो, आपकी सोल को नहीं खरीद सकता. मतलब आप कितने अमीर क्यों ना हो, एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं अपने जीवन में जोड़ सकते हो. हाँ, तो ऐसा कहा जाता है, आप कितने ही अमीर क्यों ना हो. सो इट्स नॉट द मनी दैट कैन बाय योर सोल, इट्स यू नो. तो भगवान की इच्छा होती है. तो देखिए, जो भक्त भगवान पे निर्भर है, तो भगवान की इच्छा, तो उसका जो जीवन काल है उसको बढ़ा भी सकते, तो उसको कम भी कर सकते. ठीक है. तो अभी जैसे यहाँ पे भीष्म पितामह का शरीर त्यागा है, इट्स अ मोमेंट ऑफ जॉय because finally he departed and went back to his real home, spiritual abode चले जा चुके हैं. तो जितने भी वहां पे जो मनुष्य प्रस्तुत हैं, संत लोग हैं, सेजिस हैं, everybody is so happy, and the देवतागण बहुत खुश हैं. ऊपर से क्या है, फूलों की वर्षा हो रही है. Finally the भीष्म पितामह has went back to the real abode. यहाँ तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, क्या बताते हैं? तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं. So Bhishma Dev was respected both by human beings and by the demigods. One second.
भीष्मदेव was respected both by the human beings by the demigod. भीष्मदेव जी की इतना ख्याति था, सिर्फ धरती लोक पे नहीं, इवन के ऊपर के लोग भी उनको बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। द ह्यूमन जब उन्होंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी ना, तो ऊपर से आवाज आई थी भीष्म भीष्म, मतलब काफी भीष्म प्रतिज्ञा ली, तब उनका नाम ऐसे भीष्म बना था। तो इवन डेमिगॉड्स दे नो कि हाउ पावरफुल एंड कितने दृढ़ है, मतलब दृढ़ता है इनमें भीष्मदेव में, तो इवन उनका ख्याति ऊपर के लोक में भी था। जो धरती के लोग हैं वो मतलब मनुष्य लोग तो धरती पे हैं। Similarly, other planet in the Bhuvar group of planet, but the demigod live in Swar or heavenly planet, and all them knew Bhishmadev as a great warrior and devotee of the Lord. तो ऊपर के लोग भी सभी जानते हैं कि जो भीष्मदेव है भगवान के शुद्ध भक्त है, महाजन है हमारे, और एक ग्रेट वॉरियर है। So as a महाजन or authority, he was on the level of Brahma, Narada and Shiva. Although he was a human being, दो वो मनुष्य स्तर पे है, मगर उनकी जो ख्याति है किनमें काउंट होती है? ब्रह्मा, नारद, शिवा, इनमें काउंट होता है। क्वालिफिकेशन ऑन पार विद द ग्रेट डेमिगॉड इज पॉसिबल ओनली ऑन अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। तो देखिए, जैसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है उसमें सभी देवताओं के गुण आ जाते हैं। तो मतलब आध्यात्मिक स्तर पे अगर किसी की प्रगति है तो देवता के गुण उसमें आते हैं। तो अगर भीष्मदेव का ऐसा ख्याति है, सो दैट इज ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन, कि अपने स्पिरिचुअल परफेक्शन में उनके इतना ख्याति है, बहुत देवताओं में भी उनको बहुत माना जाता है। सो दस भीष्मदेव, तभी कहा जाता है ना, इफ यू वांट टू बिकम फेमस, बिकम अ डिवोटी, बिकॉज वैष्णव नेवर डाई। भौतिक जगत में कोई फेमस हो भी जाए, जैसे आर्नोल्ड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी टर्मिनेटर? उनके एक्टर हैं एक आर्नोल्ड, मुझे पता नहीं आपको पता कि ही इज एन हॉलीवुड एक्टर, ठीक है, ही रिमेन अ मिस्टर यूनिवर्स भी रहे हैं वो। सो गवर्नर रहे हैं कैलिफोर्निया के। खैर, आई एम नॉट हियर टू ग्लोरीफाई हिम, बट आई एम जस्ट वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट कि आर्नोल्ड एक हॉलीवुड एक्टर रहे हैं। ही वाज अ वेरी फेमस एक्टर एंड तो एक होटल था जिन्होंने उनके नाम पे बाहर एक स्टैचू, उन्हीं का स्टैचू बनाया ऐसे पूरा बॉडी बिल्डिंग करते हुए, और कभी उनको बोला गया कि आप कभी भी इस होटल में आओगे आपके लिए एक रूम बुक रहेगा, व्हेनेवर यू कम देयर विल बी रूम फॉर यू। तो ऐसा बोला गया उनको। तो अभी नाउ ही इज ग्रोन अप ओल्ड, ठीक है, अब गवर्नर तो है नहीं कैलिफोर्निया के। तो कहते हैं कि भौतिक जगत में फेम और प्रेस्टीज जब तक है जब तक, आप कहते हैं चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, तो वही हिसाब भौतिक जगत में है। तो आफ्टर वाइल व्हेन ही वेंट टू दैट होटल, तो होटल के लोगों ने कहा कि आपके लिए यहाँ पे कमरा नहीं है, सॉरी सर वी डोंट हैव अ रूम। और वहीं पे उन लोगों ने क्या बोला, स्टैचू बनाया उनका भाई बाहर, और उन्हीं को मना कर दिया कि रूम नहीं है। एंड दैट पर्सन स्लीपिंग बैग लेके अपनी स्टैचू के नीचे सोया और बाद में इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, ट्विटर पे। देखो ऐसा होता है भौतिक जगत, अपने स्टैचू के नीचे सोए थे वो। So, खैर, this is a mundane example I'm giving. If you want to get looking for a fame and prestige in material world, that is only for a temporary time. Okay? मगर जो आध्यात्मिक स्तर पे जो ख्याति है वो सिर्फ धरती लोक नहीं, ऊपर के लोगों तक भी रहती है, और वैष्णव नेवर डाइज, वो कभी खत्म नहीं होते। हमारे कितने आचार्य गण हैं, अभी तक उनका ख्याति है। हाँ, well praise them, knows them, वैष्णव नेवर डाई। तो जैसे ये एक स्पिरिचुअल परफेक्शन का है। तो भीष्मदेव को पूरे यूनिवर्स में लोग जानते थे। हाँ, ड्यूरिंग हिज टाइम इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल वाज इफेक्टेड बाय फाइनर मेथड्स एंड द फ्यूटाइल एंडेवर्स ऑफ मैकेनिकल स्पेसक्राफ्ट। उस समय तो लोग एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे ट्रेवल किया करते थे, अब तो खैर स्पेसक्राफ्ट का जरूरत है। When the distant planet were informed of passing away of Bhishmadev, all the inhabitants of our planet as well as dropped shower of flowers to show due respect to the departed great personality. अब देखो हमारे यहाँ पे कोई मरेगा, बस आस पड़ोस के 2 लोगों को पता होगा। अब भीष्मदेव मरे, अरे एक दूसरे के यूनिवर्स में भी खबर फैल रही है, अरे वो भीष्मदेव, वो पता है वो उनका शरीर त्यागा। अच्छा, तो सभी लोग ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वो सो फेमस, इतना ग्लोरियस है वैष्णव कि लाइक इवन द फ्रॉम द डिफरेंट प्लेनेट पीपल आर शावरिंग फ्लावर्स। So the showering of flower from heaven is a sign of recognition by great demigods, and it should never be compared to the decoration of a dead body. ये dead body नहीं है, it's a recognition of a pure soul जो जाके अभी क्या है भगवत धाम गए हैं। So वही मैं बता रही थी कि वैष्णव के डिपार्चर में और एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के डिपार्चर में बहुत अंतर है। एक वैष्णव के डिपार्चर में everybody is joyous, so finally this soul has gone back to God. इतना अच्छा खुशी का माहौल होता है। Obviously separation is there, but it's a moment of joy also.
So ऐसा है. So the body of Bhishma Dev lost its material effect due to being surcharged with spiritual realization, and thus the body was spiritualized as when iron becomes red hot when in contact with fire. देखिए यहाँ पे बोला गया कि जो भीष्म पितामह का जो शरीर था वो पूरा अध्यात्म के स्तर पर था. कि इसका मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहूंगी, बिकॉज ये जो कथा है मुझे बहुत पसंद है, और जिसे हमारे इस्कॉन में जो ये हमारे महाराज रहे हैं, महाविष्णु गोस्वामी महाराज, older one, not the foreign body, Indian body. He has already left his body. आप मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है उनके बारे में. But he also departed in the way of Bhishma Dev, and he was the embodiment of Bhagavatam. One can say उनका मैं कितना गुणगान करूं कम है, because he is one of my idol. तो महाराज हरि बोल. तो क्या होता है, तो महाराज ने जब शरीर त्यागा था तो पूरा भीष्म देव की हिसाब से उन्होंने अपना शरीर त्यागा. और उनका एक्चुअली राजकोट में महाराज बेसिकली थे, तो नासिक में उनका इच्छा था कि क्योंकि वो नासिक से थे तो उनका इच्छा था कि नासिक में ही उनका समाधि बने. तो हुआ क्या, नासिक में उनका शरीर जो है वो वहीं पे, क्योंकि उसी उधर ही हॉस्पिटल में थे, तो महाराज का शरीर क्या कहते हैं, जो वैष्णव होते हैं ना, मैंने जैसे बोला कि उनका शरीर दिव्य होता है, हमारी तरह भौतिक नहीं है. इफ आवर बॉडी इज केप्ट फॉर फ्यू आवर्स, और धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाता है, उसमें बदबू आना शुरू हो जाता है या स्मेल होना शुरू हो जाता है. मगर वैष्णव का शरीर ऐसा नहीं होता, बिकॉज जब महाराज एक्चुअली वहां पे समाधि, मतलब उनको एज इट इज उन्हीं की बॉडी में उनको नीचे डाला जाता है नमक डाल के, तो वैसे में जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी है. तो नासिक में उनका जब समाधि खोदा गया, उनको डाला गया अंदर, तो एक्चुअली ना कुछ जैसे अघोरीज होते हैं, अघोरीज आर द मिस्टिक योगीज. तो उनका ऐसा कि अगर उनको किसी शुद्ध वैष्णव का शरीर का कुछ मिल जाए ना, सो दे उनकी पावर जो बहुत बढ़ जाती है. सो व्हाट हैड हैपेंड, रात के समय देयर इज वन ऑफ माय गॉड ब्रदर आल्सो, सेवानंद दास, ही इज फ्रॉम नेपाल, एंड देवकी प्रभु एंड अनदर डिवोटीज वर देयर, एंड सभी लोग थे वहां पे. तो महाराज का समाधि वो कवर कर दिया था, फिर नेक्स्ट डे उस पे कंस्ट्रक्शन होना. तो रात को सभी वहीं पे थे. तो रात को क्या हुआ, देयर वाज वन अघोरी के मिस्टिक योगी, उसने क्या किया, वो समाधि को खोदना शुरू किया. somehow they got to know there is a pure devotee body inside. तो वो क्या हुआ, उन्होंने महाराज के ना यहाँ तक शरीर को क्या वो खो दिया, बिकॉज ही वाज बाल, मतलब बाल थे तो शरीर पे बाल तो थे नहीं उनके, तो उन्होंने यहाँ तक मतलब क्या है वो पूरा बॉडी मतलब ऐसे खोद दिया हुआ था समाधि. एंड इमीडिएटली द डिवोटी वोक अप एंड सो, तो वो भागे, तो वो अघोरी मतलब वहां से भागा, नहीं तो अदरवाइज ही वुड हैव टेकन समथिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ महाराज. सो फिर डिवोटीज ने सोचा कि नहीं हमें जो महाराज को राजकोट लेके जाना पड़ेगा. अब राजकोट में महाराज का बेसिकली वहाँ सेंटर था गुजरात में, तो बोला कि राजकोट में जो मंदिर है ना, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, कि आप लोग जाओ, इट्स अ वेरी बिग टेम्पल देयर राजकोट में, राधा नील माधव इज देयर. सो इट्स अ वेरी मतलब बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ पे, विशाल का मंदिर है, पूरा फुल मार्बल में है. महाराज ने पूरा ट्रेडिशनल हिसाब से वो मंदिर बना, प्रोजेक्ट बना. तो हुआ क्या, तो महाराज बॉडी लेके जाना, अब देखो बॉडी को लेके जाना इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, एंड इतना कोई अलाउ करता नहीं गवर्नमेंट, यू हैव टू टेक परमिशन, दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स फॉर्मेलिटीज होती हैं. तो सबने विचार किया क्या किया जाए, और महाराज के बॉडी ने बाहर ही निकाल के रखा हुआ था. तो जितने भी लोग आ रहे थे, तो एवरीबॉडी थॉट महाराज इज स्टिल अलाइव, कि महाराज अभी भी जिंदा है, एंड एवरीबॉडी वाज पेइंग ऑबेसेंस सिटिंग. तो पूरा ऐसा लग रहा था जैसे महाराज बस समाधि में, मगर पूरा वैसे बॉडी में बिल्कुल एक भी ऐसा नहीं था कि बॉडी डिके हो रहा है, नो. एंड व्हाट हैड हैपेंड, देन डिवोटी थॉट कि ठीक है गाड़ी में बिठाओ, ऐसे ही लेके जाएंगे. तो क्या किया, महाराज को साइड वाली सीट पे बिठाया, फ्रंट पे सीट बेल्ट लगाया, दे ड्रॉप. रात को उन्होंने ड्राइव शुरू किया, नासिक से राजकोट काफी लंबा है. पीछे पुलिस वालों ने रोका, बोला अच्छा महाराज समाधि में उठेंगे नहीं, बोला नहीं महाराज समाधि में. नोबडी गॉट टू नो कि महाराज हैज ऑलरेडी लेफ्ट द बॉडी. और इस तरीके से वो महाराज का यहाँ शरीर का ट्रेवल मतलब लेके आए, और दैट्स हाउ उनका समाधि यहाँ बना. आई डोंट नो इट्स आइदर राजकोट में कि नासिक में बना, मगर ये इंसिडेंट तो हुआ है, मगर इन दोनों प्लेसेस में से कहीं पे है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है. आई एम सॉरी अगर कुछ गलत बताया, बिकॉज द लोकेशन आई स्टिल डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट, मगर ऐसा हुआ. ठीक है, तो शरीर लेके गए, फिर उनका समाधि वहां पे बनाया गया. तो दैट्स हाउ, तब वहां से ये फास्ट टाइम है कि जो देखो एक हफ्ता ऑलमोस्ट महाराज बॉडी वाज आउटसाइड ओनली, और एक रत्ती भर भी उनमें ऐसा नहीं था कि शरीर डिके हो रहा है. दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअल पोटेंसी,
कि जैसे एक यहाँ पे उदाहरण दी जा रही है कि जैसे एक लोहा होता है, अग्नि के संपर्क में रखो तो अग्नि की तरह कार्य करना शुरू करता है। उसी प्रकार जो अध्यात्म स्तर पे है वो अपने शरीर का ये जो मैटर है इसको पार करके वो दिव्यता को प्राप्त करता है। तो वही भीष्म पितामह का शरीर था, वही यहाँ पे जिसमें महाराज का उदाहरण बता रही हूँ। तो इस तरीके से दिव्यता का होता है। सो देयर बॉडी रिमेन इंटैक्ट, नेवर, तभी कहते हैं ना वैष्णव नेवर डाइज, दे डोंट डाई, तो दे रिमेन देयर। तो वैसा है, उनका बॉडी पूरा स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। तो स्पेशल सेरेमनीज आर ऑब्जर्व्ड फॉर स्पिरिचुअल बॉडीज, स्पेशल सेरेमनीज की जाती है। The respect and recognition of Bhishma Dev are never to be imitated by artificial means, as it has become a fashion to observe the so-called Jayanti ceremony for every common man. आजकल महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं, but this is not for the ordinary people. एक बहुत glorious person के लिए ऐसा दिन होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे कई डिपार्टेड वैष्णव हैं जिनका दिन डिसअपियरेंस मनाया जाता है, ठीक है। So it says, so according to authorized shastra, such a Jayanti ceremony for an ordinary man, however exalted he may be materially, is an offense to the Lord, because Jayanti is reserved for the day when the Lord appears on the earth. तो जो जयंती जो दिवस है वो बेसिकली भगवान के लिए है, चाहे भौतिक स्तर पे कोई मनुष्य कितना ही एलिवेटेड क्यों ना, मगर उसके लिए जयंती शब्द यूज करना अपराध है। तो ये जो महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं ये अपराध है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे भागवतम के अनुसार। So Bhishma Dev was unique in his activity and his passing away to the kingdom of God is also unique. अब भीष्म देव महाजनों में सबसे सर्वोपरि और सबसे यूनिक थे, तो उनका पासिंग अवे भी बहुत ज्यादा यूनिक था। People shout flower from the upwards. So this is how our Bhishma Dev passed away. Bhishma Dev ki jai. So we'll read this more shloka one more. It says, Tasya niraharanadini sampritesya bhargava yudhishthira karyatva muhurtam dukhito bhavata. O descendant of Bhrigu, Shaunaka, after performing funeral rituals for the dead body of Bhishma Dev, Maharaj Yudhishthira was momentarily overtaken with grief. देखिए कोई भी हमारे परिजन जब शरीर त्यागते हैं, नेचुरल है कि हमें थोड़ा सा ग्रीफ आए, हम थोड़ा सा रोए। अब जैसे वैष्णव गण भी जब शरीर त्यागते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे प्रभुपाद को उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद अभी आप शरीर त्यागेंगे, ये हमारे गुरुजन ने शरीर त्याग, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने बोला वन शुड क्राई, हमें रोना चाहिए। मतलब इट्स इन ग्रीफ वी शो द सेपरेशन, वी आर डिपार्टेड, तो वो हम ग्रीफ शो करते हैं। बट दैट डजंट मीन दैट दे आर नॉट इन द नॉलेज। हम लोग ज्ञान में होते हैं, मगर ग्रीफ इसलिए कि इस संत का हमें संग नहीं मिल पाएगा। सो दैट इज वेरी मच ऑफ लाइक पेनफुल सिचुएशन कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट द एसोसिएशन ऑफ दैट डिवोटी अगेन। तो वो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। तो प्रभुपाद को बोला, तो प्रभुपाद ने बोला रोना चाहिए। तो इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज भी जब फाइनल राइट्स के, ही ऑल्सो क्राइड, तो वो भी रोए थे। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, कहते हैं Bhishma Dev was not only a great family head of Maharaj Yudhishthir, but also he was a great philosopher and friend to him, his brother and his brother. तो भीष्म देव एक केवल बड़े हेड ही नहीं थे युधिष्ठिर महाराज की फैमिली के, बट एक मित्र, फिलोसोफर या एक ब्रदर, भाई की तरह, माता के समान भी थे। Maharaj Pandu, the father of the 5 brothers headed by Maharaj Yudhishthira, had died. Bhishma Dev was the most affectionate grandfather of the Pandavas and caretaker of the widow, daughter-in-law Kunti Devi. क्योंकि ऐसा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वहां पे कि पांडु महाराज के पास एक भीष्म देवी थे जिनका जो थोड़ा बहुत अफेक्शन शो किया करते थे। या हरे कृष्णा। So that's how it had happened. So most affectionate grandfather of Pandava and caretaker of widow, तो वो caretaker थे उनके। So although Maharaj Dhritarashtra, the elder uncle of Maharaj Yudhishthira, was there to look after them, his affection was more on the side of his 100 sons, headed by Duryodhana. कहते हैं अब महाराज धृतराष्ट्र जो तो उनके बड़े भाई थे, मतलब उनके पिताजी के, मगर उनका ध्यान फिर भी अपने पुत्रों की तरफ। वही था, कहते हैं वो क्या कह रहे थे कि जो पहला श्लोक भगवद गीता का आता है, क्या कहते हैं उसमें, धृतराष्ट्र उवाच, what was the shloka? Anybody remember? I forgot. उसमें मगर कहते हैं किम अकुर्वता बोलते हैं मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वता संजय, कि कहते कि मेरे पुत्र
और पांडु पुत्र, ये नहीं बोला कि हमारे ही पुत्र, तो वहीं पे डिस्क्रिमिनेशन दिखता है. She was more inclined toward the Kauravas. ठीक है. Ultimately, a collegial clique was fabricated to deprive the 5 fatherless brothers of right to claim of kingdom of Hastinapur. There was a great intrigues common in imperial palaces. तो इन शॉर्ट अगर पांडवों के प्रति कोई अगर रक्षक था तो वो कौन थे? युधिष्ठिर महाराज के प्रति भीष्मदेव, बाकी कोई उनकी साइड नहीं था. तो और युधिष्ठिर महाराज इस चीज के पीछे अवेयर भी थे कि इट्स ओनली लाइक भीष्मदेव हु वाज क्वाइट वेरी गुड वेल विशर, इसीलिए उनके प्रति वो एक फीलिंग ऑफ सेपरेशन उनके पास था. He was sorry for the separation of great soul and not for the material body which Bhishmadev relinquished. तो बॉडी के लिए नहीं, आत्मा के प्रति था, क्योंकि he was the ज्ञानी. The funeral ceremony was a necessary duty, although Bhishmadev was a liberated soul. Since Bhishmadev was without issue, the eldest grandson, namely Maharaj Yudhishthir, was the rightful person to perform a ceremony. तो final उनका rights किया उन्होंने. So it was a great boon to Bhishmadev that an equally great son of family undertook the last rites of a great man. तो ये भीष्मदेव के लिए भी बहुत भाग्य की बात थी कि मतलब उस ओकेजन पे युधिष्ठिर महाराज ने उनके फाइनल राइट्स किए, एंड बिकॉज ही वांटेड कि ऐसा ही होना चाहिए, और फाइनली युधिष्ठिर महाराज ने उनके इक्वल राइट्स किए एंड ही फील दैट सेपरेशन. तो ये हमारे जो डिपार्चर है ये हमारे एक शुद्ध वैष्णवों का होता है. तो देखिए वही मैंने बोला ना कि वैष्णवों की ख्याति अंत काल तक रहती है. सो वी शुड बी लुकिंग फॉर दैट. उस तरीके का होना चाहिए, ये भौतिक स्तर पर नहीं. ये वैष्णवों का ख्याति है तो वी शुड लर्न. तो दिस इज अ ग्रेट लर्निंग फ्रॉम द पासिंग. जिस प्रकार से भीष्मदेव ने शरीर त्यागा और किस तरह से पूरे चिंतन किया और किस तरह से वहां के लोगों का रिएक्शन था, ये बताता है कि वैष्णव कल्चर बहुत ही अलग है एक भौतिक स्तर से. इट्स ऑन अ वेरी ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म. तो ये हमें देखना चाहिए यहाँ से. तो आज यहीं पे थोड़ा विराम लेते हैं, समय हो चुका है. तो किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना हो तो प्लीज गो अहेड. एनीवन हैविंग एनीथिंग? यस, हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न है? कुछ नहीं है तो हम लोग यहीं पे विराम लेंगे. यस, हरे कृष्णा. और एनी कमेंट और एनी रियलाइजेशन? नथिंग? कुछ नहीं कहना है किसी को? Okay. Okay, if nothing, then we can stop here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Hare, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Granthra Shriman Hare Jai, Srila Prabhupada ki jai, all the devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the evening. Today's song class, today is not a Bhagavad Gita class. तो आज संडे है तो आज हमारा भजन क्लास रहेगा, तो शाम को हम लोग उसी में मिलेंगे आपको. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.